Today we are going to begin a new chapter of a 9th standard science syllabus, that is the chapter called as gravitation. This is one of the, I can say, lengthiest chapter, but it's one of the most interesting chapter of your science. Okay, this gravitation comes under the physics part of your science syllabus, and one of the most interesting and attractive concepts are there in this particular chapter. So I request you to please pay attention when I teach this chapter so that you can enjoy the chapter as we learn through the course. Okay, but before starting the chapter, I would like to introduce myself. My name is Petiwala Muhammad Salman. I'm a mechanical engineer by my profession, and I'm going to teach this particular chapter, gravitation, to you all. Okay, come on. Let's first write down that what we are going to learn in this particular chapter. What will be the flow of the chapter? क्या क्या पढ़ना है वो हम list कर देते हैं, and one by one we will see the concepts. Okay, so let's start. What are we going to learn this chapter? First of all, we'll study what do you mean by gravitation. Then next we will see the universal law of gravitation. Okay, मैं लिस्ट बना देता हूं जो हमें स्टडी करना है इस चैप्टर में. सबसे पहले ग्रेविटेशन, उसके बाद यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखेंगे. उसके बाद वी विल स्टडी व्हाट डू यू मीन बाय अ फ्री फॉल. देन आफ्टर दैट वी विल स्टडी व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, रिमेंबर गाइस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल जी से. उसके बाद वी विल स्टडी how to calculate your small g, right? Small g क्या, acceleration due to gravity. हम next article में उसके बाद देखेंगे small g यानी acceleration due to gravity कैसा calculate किया जाता है. उसके बाद we will see the next concept, that is the motion of objects under the influence of gravity, or I can say under the influence of what? Under the influence of gravitational pull, या gravity भी कह सकता हूं. Then after these articles we then focus on what is the difference of mass versus weight. Okay, we will see what is the difference of mass or weight. Mass और weight क्या क्या होते हैं. Then after that we will see what do you mean by thrust versus your pressure. Okay, thrust versus your pressure. Then we will see what do you mean by your buoyancy. Okay, after that we will see what do you mean, what is the Archimedes principle. Archimedes principle. Okay, just make sure of the spelling. Okay, fine. Then after that we will see what is relative density. तो काफी कंसेप्ट्स पढ़ने हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर. बहुत सारे कंसेप्ट्स डीप में हमें स्टडी करने हैं इस चैप्टर में, विच आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गाइस, एंड इट विल बी अ गुड, आई कैन सी, एक्सपीरियंस व्हेन यू लर्न ऑल दीज कंसेप्ट्स. just count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 things which we need to study in this particular chapter, gravitation, are these. So let's start with the introduction of the chapter. Come on, let's start with the first concept, that is what is gravitation. Guys, in the earlier chapter you have studied what is motion, right? Motion हमने पढ़ा है, and what else we have studied? We have studied what do you mean by force and what are the laws of motion, right? तो अब यहाँ पर उनके उस टॉपिक्स के रिलेटेड ही कुछ हमें फर्दर स्टडी करनी है. ठीक है, उस टॉपिक्स के रिलेटेड कुछ हमें आगे कॉम्प्लेक्स थोड़ी सी स्टडी करनी है, थोड़ा एडवांस स्टडी करनी है. ओके, सो पे अटेंशन. नाउ दिस वर्ड ग्रेविटेशन, ये वर्ड ग्रेविटेशन सुन के एक चीज हमारे दिमाग में आती है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटी, राइट? जब भी ग्रेविटेशन सोचो तो एक चीज दिमाग में आती है, क्या? ये वर्ड ग्रेविटी. ओके, मुझे पता है आप लोगों ने ग्रेविटी या ग्रेविटेशन आज से पहले कभी नहीं पढ़ा है. लोअर स्टैंडर्ड्स में 8th स्टैंडर्ड तक हमने नहीं पढ़ा. ये नया कंसेप्ट है ग्रेविटेशन या ग्रेविटी, बट यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस वर्ड. ग्रेविटी से हम वेल अवेयर है. क्यों? बिकॉज ऑफ द फैक्ट, लेट्स से मैं पेन को है ना ऐसा छोड़ देता हूं. ठीक है, जब मैं इस पेन को ऐसा ड्रॉप करता हूं तो ये नीचे जाता है. क्यों नीचे जाता है? आप कहोगे सर ये पेन को जब आप ड्रॉप करोगे तो नीचे जाएगा,
क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रही है, राइट? अच्छा, तो मतलब ग्रेविटी कहां से आता है? लेट्स से एक मेरे पास बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर से इफ आई ड्रॉप अ बॉल, ओके, ये बॉल है, इसको मैं ड्रॉप करता हूं, तो ये बॉल क्या होगा? ये बॉल हमेशा नीचे आएगा, राइट? इट विल कम डाउन. अनदर एग्जाम्पल कैन बी इफ यू हैव अ ट्री एंड ट्री पे एक लेट्स से एप्पल है, ओके, दिस इज योर एप्पल. एप्पल अगर टूटेगा तो वो कैसा आएगा? वो नीचे आएगा, राइट? एप्पल विल ऑलवेज कम डाउन. ओके, अनदर एग्जाम्पल कैन बी लेट्स से देयर इज अ मैन out here and there is a swimming pool out here, okay, this is your swimming pool. Let's say this man is jumping in the swimming pool. This man is jumping from the building into the swimming pool. तो वो जब जंप करेगा तो क्या होगा? ऐसा नीचे आएगा, ठीक है? तो जब वो नीचे गिरता है तो हमें एक चीज समझ में आती है, ये क्या हो क्या रहा है? ये सब केसेस में जब ये बॉल को मैं छोड़ रहा हूं तो वो नीचे आ रहा है, ये एप्पल ट्री से टूटकर नीचे आ रहा है, ये मैन ऐसा जंप मारेगा तो वो भी नीचे आ रहा है. मतलब किसी भी चीज को अगर हम हाइट से ड्रॉप करें, किसी भी चीज को हम हाइट से ड्रॉप करें तो वो हमेशा नीचे आएगी. ओके, दिस इज द फिनोमेना. जब किसी भी चीज को हम हाइट से ड्रॉप करें तो हमेशा नीचे आएगी. दिस इज नथिंग बट योर ग्रेविटी, बराबर? दिस इज नथिंग बट योर ग्रेविटी. लेट्स से मैं 5th फ्लोर से जाकर के जंप करता हूं तो मैं कहां जाऊंगा? मैं सीधा नीचे गिरूंगा, राइट? कोई भी चीज को, लेट्स से बुक को भी मैं 5th फ्लोर से जाकर ऐसे ड्रॉप करूंगा तो वो नीचे आएगा. हेंस आई कैन से एवरी फिनोमेना इज रिलेटेड, कि हम इतना समझ में हमें पता है और इतना समझ में हमें आता है कि कभी भी कोई चीज को ऊपर से ड्रॉप करो तो वो हमेशा नीचे ही जाएगी, राइट? एक एप्पल का एग्जाम्पल ले लो, वो एप्पल ना राइट जाएगा, ना लेफ्ट जाएगा, ना ऊपर जाएगा, हमेशा वो नीचे ही गिरेगा. दिस इज नथिंग बट योर ग्रेविटेशन और दिस इज नथिंग बट योर ग्रेविटी. सो व्हाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है कि ऊपर से कोई भी चीज छोड़ो तो नीचे आती है? इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अर्थ हमारा जो है ना, अर्थ वो हर चीज को अपनी तरफ खींचता है. लिसन टू दीज वर्ड्स. अर्थ जो है वो हर चीज को अपनी तरफ खींचता है, चाहे वो ये पेन हो, चाहे वो एप्पल हो, चाहे ये बॉल हो, चाहे ये मैन हो. अगर हम जंप करते हैं या उसे छोड़ देते हैं तो अर्थ उसे क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा. ओके, सो ये जो अर्थ है अपनी तरफ हर चीजों को खींचता है. दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज योर ग्रेविटी. ओके, सो हाउ कैन यू डिफाइन योर ग्रेविटी और हाउ कैन यू राइट ग्रेविटी इन वर्ड्स? ग्रेविटी को हम वर्ड में लिख सकते हैं दैट अर्थ pulls objects towards it, right? Earth pulls objects towards it. हमेशा अर्थ क्या करता है? ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है. ओके, अगर मैं इस एप्पल को यहां से फेंकूंगा तो एप्पल हमेशा नीचे गिरेगा. क्यों? क्योंकि वो अर्थ उसको क्या कर रहा है? पुल कर रहा है, राइट? अच्छा दोस्तों, हमें पता है व्हाट इज पुल. पुल इज नथिंग बट अ फोर्स, राइट? ये नीचे की तरफ, कैन आई जस्ट राइट दिस इज योर पुल और आई कैन राइट दिस इज योर फोर्स. हेंस आई कैन से ये फोर्स क्या है? ये पास आने वाला फोर्स है, राइट? पास आने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. हेंस आई कैन राइट डाउन अर्थ गिव्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू द ऑब्जेक्ट. Earth gives a force of attraction to the object. इसका क्या मतलब है? कोई भी चीज अगर अर्थ पे है तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींचता है. अपनी तरफ खींचना मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अपने पास बुलाना. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज द शेप ऑफ द अर्थ और यहां पर ये अर्थ है मेरा. अर्थ इज वी नो अ स्फीयर, राइट? अर्थ इज अ शेप ऑफ अ स्फीयर. अर्थ पे लेट्स से ये पर्सन क्या है? खड़ा है. ओके, ये अर्थ पे पर्सन खड़ा है. ये पर्सन अर्थ पे क्यों खड़ा है? या मैं अर्थ पे खड़ा क्यों? क्योंकि अर्थ मुझे नीचे की तरफ खींच रहा है, राइट? सो आई कैन जस्ट से दिस इज नथिंग बट अर्थ इज पुलिंग दिस पर्सन डाउन, बराबर? अगर वो आगे ऊपर जंप करेगा या मैं ऊपर जंप करने की कोशिश करूंगा तो मैं भी नीचे आ जाऊंगा, राइट? इफ यू ट्राई योरसेल्फ, अगर हम जंप करते ऊपर जाते हैं तो हम नीचे ऑटोमेटिकली आते. क्यों? क्योंकि अर्थ हमेशा हमें अपनी तरफ खींचता रहता है, राइट? Hence, I can say this is also the phenomena of your gravity. तो ग्रेविटी या ग्रेविटेशन सिर्फ इतना अभी तक समझ में आया मुझे
कि अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, राइट? अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है. खींचना मतलब पुल, राइट? सो आई कैन से अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट and earth gives a force of attraction to the object. This is nothing but your phenomena of your gravitation. I hope this funda is clear in your mind, okay? So we have seen certain examples. Let's say एक और example देता हूं आपको. The example of the earth and the moon. Earth and the moon. Okay. This is your moon and this is your earth, right? अच्छा, हमें पता है दोस्तों, मून अर्थ के नजदीक ही रहता है, मून अर्थ के पास ही रहता है, राइट? क्यों अर्थ के पास रहता है? क्यों? क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो मून को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है. आई विल एक्सप्लेन यू दिस कंसेप्ट. वो मून को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है. नाउ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो मून को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, द मून परफॉर्म्स और मून मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ. ठीक है? मून अर्थ के आसपास ऐसा सर्कुलर पाथ मूव करता है. क्यों? क्योंकि अर्थ मून को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है. आई विल गिव यू वन सिंपल एग्जांपल. लेट्स एक्सटेंड एन एग्जांपल. लेट्स से यू हैव अ थ्रेड, ओके? एक हमारे पास थ्रेड है और थ्रेड के ऊपर हमारे पास स्टोन है. ठीक है? थ्रेड के ऊपर हमारे पास स्टोन है और हम उस स्टोन को घुमा रहे हैं. ओके? हम उस स्टोन को घुमा रहे हैं. तो जब उस स्टोन को हम घुमाएंगे तो वो स्टोन ऐसा सर्कल बनाएगा, राइट? ओके? ये स्टोन को हम ऐसा घुमा रहे हैं हॉरिजॉन्टल सर्कल में. तो आप देख सकते हो ये स्टोन ऐसा घूमेगा. तो जब दोस्तों ये स्टोन घूमेगा तो क्या होगा? हमेशा अंदर की तरफ एक फोर्स एक्ट करेगा. हमेशा क्या होगा? अंदर की तरफ फोर्स एक्ट करेगा. देखो ये फोर्स अंदर की तरफ क्यों एक्ट कर रहा है? ताकि वो सर्कल बनाए. अगर ये अंदर की तरफ फोर्स एक्ट नहीं होगा ना तो क्या होगा? ये स्टोन ऐसा बाहर निकल जाएगा, राइट? ऐसा सर्कल होने की जगह पे वो बाहर चला जाएगा. क्यों? क्योंकि अंदर की तरफ फोर्स जरूरी है. ओके, सो हेंस आई कैन से ये जो अंदर की तरफ फोर्स एक्ट करता है ना, दैट इज कॉल्ड एज द सेंट्रीपिटल फोर्स. दैट इज कॉल्ड एज द सेंट्रीपिटल फोर्स. सो ऑलवेज रिमेंबर, जब कभी कोई स्टोन या कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव होता है तो अंदर की तरफ एक फोर्स एक्ट करता है अलोंग द रेडियस. रेडियस के साथ साथ along the radius, that is called as the centripetal force. और अगर ये centripetal force ना हुआ ना तो क्या होगा? ये जो ऑब्जेक्ट है वो बाहर चला जाएगा. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम इसको घुमा रहे, अचानक से अगर कोई आके स्ट्रिंग को काट देता है तो क्या होगा? ये क्या फिर वो स्टोन घूमेगा? नहीं, वो स्टोन नहीं घूमेगा. क्यों? क्योंकि वो अंदर का फोर्स चला गया. अगर मैं आ करके इसको घूमते मैं आके इसे सीजर से इसको काट देता हूं, ठीक है, इस थ्रेड को काट देता हूं, तो स्टोन बाहर चला जाएगा, अंदर नहीं रहेगा. हेंस सर्कल में मूव होने के लिए इतना समझ जाओ कि हमें अंदर की तरफ फोर्स की जरूरत है, राइट? और वो फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपेटल फोर्स. नाउ आप देख सकते हो मून भी अर्थ के आसपास घूम रहा है. ओके, हेंस आई कैन से कि उसके लिए भी अंदर की तरफ एक फोर्स होना चाहिए, सेंट्रीपेटल फोर्स. और वो सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? वो सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है हमारा ग्रेविटी. बराबर? मून को ऐसे सर्कल में होने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स की जरूरत है. हमने स्टडी किया कि कोई भी ऑब्जेक्ट को गोल घूमने के लिए क्या किसकी जरूरत है? सेंट्रीपेटल फोर्स की जरूरत है. एंड दैट सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय व्हाट? अंदर की तरफ कौन प्रोवाइड करता है? अर्थ प्रोवाइड करता है. हमें पता है अर्थ हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको कहता है मेरे पास आ जा, राइट? मेरे पास आ जा, ऐसा पुल करता है. हेंस ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स जरूरी है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? मून के केस में हमारा ग्रेविटी प्रोवाइड कर रहा है. ओके, सो आई होप this concept of your centripetal force, that is force coming inside, is clear. That is provided by the earth in case of your gravitation. Okay, so make a note of this funda first. Now friends, let us understand the phenomena of your gravity. Okay, I hope वो समझ में आया कि मून को, अर्थ हमारे मून को अपनी तरफ खींचता है तो मून सर्कुलर पाथ परफॉर्म करता है, राइट? इसका मतलब ये है कि अर्थ हमारा हर चीज को अपनी तरफ खींचता है. ओके, For example, let's extend that example to the apple, right? हमने अभी पढ़ा कि यहाँ let's say this is the tree and इस tree पे if this is the apple, then when this apple gets down, okay, अगर इस apple को तोड़ा जाए
तो वो एप्पल नीचे आएगा, राइट। हेंस इतना मुझे समझ में आता है कि वो एप्पल नीचे क्यों आएगा, क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ नीचे खींचेगा, राइट। अर्थ विल पुल इट टुवर्ड्स इटसेल्फ। समझ में आया ना। ये एप्पल नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि अर्थ यहां पर इसको क्या कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। ओके, नाउ गाइस, ये एप्पल से है ना एक स्टोरी स्टार्ट हुई। नाउ व्हाट इज दैट स्टोरी? दैट स्टोरी वाज द स्टोरी ऑफ न्यूटन। नाउ दिस चैप्टर ग्रेविटेशन was given by a scientist, or this concept was brought into the world by the scientist named as Mr. Isaac Newton. Okay, now ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसके लिए हुआ कि एक दिन है ना न्यूटन एक ट्री के नीचे बैठा था। ओके, एक ट्री के नीचे बैठा था और वो ट्री के नीचे बैठकर सोया हुआ था और अचानक से वो ट्री के ऊपर से एक एप्पल गिरा उसके सर पर और उसकी नींद खुल गई। ओके, जब उसने देखा कि उसके सामने वो क्यों उठा, तो उसने सोचा कि मैं उठा इसकी वजह से क्योंकि मेरे सर पे एप्पल गिरा। ओके, तब से वो सोचने लग गया कि ये एप्पल जब ट्री से नीचे गिरा तो वो नीचे क्यों गिरा। ओके, इसके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि ट्री से जब एप्पल टूटा तो वो नीचे क्यों गिरा। देन ही स्टार्टेड थिंकिंग कि वो इसके लिए गिरा होगा क्या, क्योंकि अर्थ उस एप्पल को अपनी तरफ नीचे खींचता है, राइट। एंड ही स्टार्टेड गिविंग different laws, and according to that laws we came across the different relation in our chapter of gravitation. Okay, तो इतना समझ में आ गया हमें कि ये जो एप्पल है अगर ये टूटेगा तो नीचे आएगा। क्यों नीचे आएगा? क्योंकि your earth will pull the apple towards it. I can say what is this? This is nothing but the fact that the earth will attract the apple towards it and pull it towards itself. समझ में आया? ये सेंटेंस तो पता है हमें। The earth will attract the apple towards it. अर्थ एप्पल को अपनी तरफ बुलाएगा। ओके, अर्थ एप्पल को अपनी तरफ खींचेगा। अच्छा, इसका उल्टा जरा सोचो, क्या ये भी हो सकता है कि ये एप्पल अर्थ को अपनी तरफ खींचे? देखो, पहला स्टेटमेंट क्या कहा मैंने, पहला स्टेटमेंट तो समझ में आया, अर्थ एप्पल को अपनी तरफ खींचेगा, राइट। अर्थ विल अट्रैक्ट द एप्पल। ओके, दिस इज क्लियर। सेकंड स्टेटमेंट मैंने कहा कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये एप्पल अर्थ को अपनी तरफ खींचे। ओके, सो आई कैन जस्ट राइट डाउन द सेकंड स्टेटमेंट दैट द एप्पल विल अट्रैक्ट द अर्थ। To your surprise, both the statements are true. Both the statements are true. जब कभी एक पेड़ से एप्पल टूटेगा ना तो वो एप्पल अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा और अर्थ उस एप्पल को अपनी तरफ खींचेगा। दोनों पॉसिबल है। ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, अर्थ कहता है एप्पल को मेरे पास आ जा, एप्पल कहता है अर्थ को मेरे पास आ जा। ऐसा क्यों पॉसिबल है? दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ of motion. This is possible because of Newton's third law of motion. I'll repeat again. जब एप्पल पेड़ से टूटा तो अर्थ ने उसे कहा मेरी तरफ आ जा, खींच लिया नीचे, और एप्पल ने अर्थ को कहा मेरी तरफ आ जा, मतलब दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज an equal and opposite reaction. There is an equal and opposite reaction. मतलब इस फोर्स के सामने there will be an equal and opposite reaction. मतलब इस फोर्स के सामने एक और फोर्स होना चाहिए, right? That will be equal and opposite. ये दोनों equal हो गए और opposite हो गए। I hope हमने पढ़ा है what do you mean by Newton's third law. To every action there is an equal and opposite reaction. मतलब एक एक्शन दूंगा तो उसका सामने से रिएक्शन आएगा, उसी तरह से ये जो एक्शन है उसका सामने से रिएक्शन आया है। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ ये क्या है? This is nothing but the earth is attracting the apple. This force is nothing but this force is standing for the earth attracting the apple, attracting apple. और ये वाला फोर्स क्या है?
apple attracting the earth? Apple attracting earth. तो इतना मुझे समझ में आ रहा है कि दोनों बॉडीज एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. अर्थ भी एप्पल को अपनी तरफ खींचेगा, एप्पल भी अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा. समझ में आया? तो दोनों तरफ से क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, जब कभी ग्रेविटेशन हो रहा है तो अट्रैक्शन सिर्फ एक तरफ से नहीं है, अट्रैक्शन दोनों तरफ से. ओके, समझ में आया कंसेप्ट? अट्रैक्शन दोनों तरफ से. ये कहेगा तू मेरे पास आ जा, वो कहेगा तू मेरे पास आ जा, दोनों एक दूसरे के पास आएंगे. राइट? सो दिस लीड्स अस to the Newton's law of gravitation या universal law of gravitation. यहां से हम जा सकते हैं universal law of gravitation पे. Okay, what is universal law of gravitation? I'll just define the law and keep, then we'll come back to this concept again. Okay, हम ये concept पे वापस आएंगे, बस सिर्फ अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिफाइन कर लेते हैं. ओके, अब तक हमने क्या पढ़ा कि एक एप्पल है, वो अपनी तरफ अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और अर्थ भी एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. अगर मून का एग्जांपल भी दे दूं तो अकॉर्डिंग टू द सेम कंसेप्ट आई कैन से कि मून अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा और अर्थ मून को अपनी तरफ खींचेगा, दोनों एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ खींचेंगे. राइट? इतना अब तक समझ में आ चुका है. सो अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट्स में? आई कैन सिंपली राइट डाउन द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दैट एवरी पार्टिकल in the universe attracts the other particle. Every particle in the universe attracts the other particle. मतलब एक पार्टिकल है वो दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा और दूसरा पार्टिकल है वो फर्स्ट वाले पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा. I'll just give you a simple example as given in your textbook. ठीक है? ये स्टेटमेंट समझ में आया? Every particle in the universe attracts every object, okay? और every other particle कह दो या object कह दो. ठीक है? Okay, attracts every other particle. मतलब ये एक पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल है, दो पार्टिकल्स है मेरे पास. लेट्स से दो बॉल्स है. ओके, दो पार्टिकल्स है या दो ऑब्जेक्ट्स है. यू कैन इवन मेंशन आउट योर ऑब्जेक्ट्स. ओके, तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये दो पार्टिकल्स है, ये एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. तो ये कहेगा इससे मेरी तरफ आ जा, मतलब ये इसे खींचेगा. खींचेगा मतलब ये फोर्स लगेगा यहां पर, लेट्स से फोर्स F. ओके, ये इसको यहां पर फोर्स से खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, मतलब यहां पर भी एक फोर्स आने वाला है. ओके, यहां पर भी एक फोर्स आने वाला है. हेंस आई कैन से एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स द अदर पार्टिकल. ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा. जिस तरह से एप्पल अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा था और अर्थ एप्पल को अपनी तरफ खींच रहा था. राइट? दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. ओके, बट फ्रेंड्स अब आप सोच रहे होगे, लेट्स कम बैक टू दिस कंसेप्ट, वी विल गो देयर लेटर ऑन. ओके, अब आप यहां सोच रहे होगे कि अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट करता है, वो तो समझ में आया क्योंकि वो नीचे आता है. बट हाउ एप्पल अट्रैक्ट्स द अर्थ? एप्पल अगर मेरे अर्थ को अट्रैक्ट करता है तो अर्थ क्यों नहीं मूव होता है? राइट? एप्पल अगर अर्थ को अपनी तरफ खींचता है, देखो मैंने क्या कहा पहले कि अर्थ एप्पल को अपनी तरफ खींचता है और एप्पल अर्थ को अपनी तरफ खींचता है. तो ऐसा क्यों होता है कि एप्पल नीचे आता है, अर्थ को भी तो ऊपर आना चाहिए ना? ऐसा क्यों नहीं होता? दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द न्यूटन्स सेकंड लॉ. The reason is Newton's second law of motion. Second law of motion. What does Newton's second law of motion state? If you remember, Newton's second law of motion states that force is equal to mass into acceleration. Mass into acceleration, right? F is equals to ma. दोस्तों इन दोनों केस में जो फोर्स है वो कांस्टेंट है. फोर्स इज कांस्टेंट, राइट? सेम फोर्स है, बराबर ना? इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है, इक्वल फोर्स है, फोर्स कांस्टेंट है. देयरफॉर आई कैन राइट डाउन इफ फोर्स इज कांस्टेंट योर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल या एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. राइट? अगर ये कांस्टेंट है, इसको नीचे ले लो तो एक्सेलरेशन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. राइट? मैंने m को सिर्फ क्या कर दिया, नीचे ले लिया. हेंस ऑलवेज रिमेंबर your acceleration is inversely proportional to mass.
acceleration is inversely proportional to mass. Now what do you mean by this? इसका ये मतलब होता है कि जिसका मास कम उसका एक्सेलरेशन ज्यादा. ओके, इनवर्स का मतलब ये होता है एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, मतलब अगर मास कम तो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा, वो ज्यादा फास्ट मूव होगा. अच्छा, एक्सेलरेशन हमें पता है, एक्सेलरेशन इज रिलेटेड टू स्पीड, राइट. अगर मैं कहूं दो कार्स है, एक का एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है तो वो फास्ट मूव होगी, और एक का एक्सेलरेशन बहुत नेग्लिजिबल है मतलब वो बहुत स्लो होगी, राइट. ओके, उसकी स्पीड चेंज बहुत स्लो होगा. ओके, सो आई कैन डेफिनेटली से कि जिसका मास ज्यादा उसका एक्सेलरेशन कम, हेंस आई कैन राइट मोर मास लेस एक्सेलरेशन. और सेकेंड स्टेटमेंट वुड बी, और जिसका लेस मास है देन मोर एक्सेलरेशन. Let me just give you an example. What do I mean by this statement? More mass, less acceleration in case of constant force. Let's say दो स्टूडेंट्स हैं, दो बच्चे हैं, दोनों साइकिल पे बैठे, ठीक है. अच्छा, एक बच्चा है एकदम थिन है, ठीक है, सेम साइकिल पे बैठे, एक बच्चा एकदम थिन है और एक बच्चा जो है वो बहुत फैट है. ओके, अच्छा, मैं दोनों साइकिल्स को ऐसा धक्का देता हूं इक्वल फोर्स से, तो बताओ मुझे कौन सा साइकिल एक्सेलरेट ज्यादा करेगा या कौन सा जो साइकिल है वो फास्ट आगे जाएगा. आप कहोगे सर जो साइकिल पे जो पतला दुबला थिन बच्चा बैठा था ना वो ज्यादा फास्ट रहेगा या उसका एक्सेलरेशन ज्यादा रहेगा. क्यों? क्योंकि उसके मास उसका कम है, राइट. उसी तरह से जिसका लेस मास उसका एक्सेलरेशन ज्यादा. आई होप दिस एग्जांपल इज क्लियर. दोनों साइकिल्स को मैंने इक्वली धक्का मारा, जो जिसपे फैट बंदा बैठा था, फैट जो स्टूडेंट था या फैट चाइल्ड था वो बैठा था, वो आगे नहीं जा पा रहा है. क्यों? आगे जाएगा पर बहुत स्लो जाएगा. क्यों? क्योंकि उसका एक्सेलरेशन कम, बिकॉज ऑफ मोर मास. हेंस मोर मास लेस एक्सेलरेशन. और जिसका मास कम है उसको भी धक्का दिया मैंने सेम फोर्स से, तो वो आगे ज्यादा गया क्योंकि उसका एक्सेलरेशन ज्यादा है. ओके, मास कम एक्सेलरेशन ज्यादा, मास ज्यादा एक्सेलरेशन कम. ओके, नाउ कम टू दिस एग्जांपल, एप्पल और अर्थ. ओके, एप्पल और अर्थ को कंपेयर करूं तो मैं कहूंगा कि मास ऑफ एप्पल is very very small as compared to earth, right. Hence mass किसका कम है? एप्पल का. Hence उसका acceleration ज्यादा होगा. Hence I can write down apple has less mass, hence it will have more acceleration, hence it will have more acceleration. Try and understand this statement. अगर एप्पल का मास कम है तो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा उस. ओके, और आई कैन राइट डाउन वन मोर स्टेटमेंट आउट हियर, अर्थ हैज मोर मास एंड हैज लेस एक्सेलरेशन एंड हैज लेस एक्सेलरेशन. ओके, समझ में आया? अर्थ का मास ज्यादा है और उसका एक्सेलरेशन कम होगा. ओके, सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि जो एप्पल है वो थिन बॉय है और जो अर्थ है वो फैट बॉय है. हेंस दोनों को अगर सेम फोर्स लगाओ तो थिन बॉय फास्ट जाएगा और जो फैट बॉय है वो क्या होगा? स्लो जाएगा. उसी की वजह से जो अर्थ है उसका मास ज्यादा है, हेंस वो मूव नहीं होता. ठीक है, वो फैट बॉय का एग्जाम्पल है, हेंस वो मूव नहीं होता. और एप्पल जो है वो थिन बॉय का एग्जाम्पल है, बहुत पतला दुबला है, बहुत कम मास है, हेंस वो ज्यादा फास्ट मूव होता है. हेंस उसके ज्यादा फास्ट मूव होने की वजह से हमेशा एप्पल अर्थ की तरफ आके गिरेगा, अर्थ एप्पल की तरफ नहीं जाएगा. ओके, अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल. एप्पल अर्थ की तरफ आएगा, अर्थ एप्पल की तरफ नहीं जाएगा. क्यों? क्योंकि अर्थ हैवी है. अर्थ हैवी होने की वजह से हैवी बॉडी मूव नहीं होती. रिमेंबर दिस पॉइंट जो मैंने अभी कहा, हैवी बॉडी मूव नहीं होगी, लाइट बॉडी मूव होगी. आई कैन राइट डाउन लाइक दिस, light body will move and heavy body will not move, right? Acha, you can even extend this example in case of your earth and moon. earth और moon के केस में, earth और moon के केस में मुझे बताओ, अभी हमने पढ़ा कि लाइट बॉडी विल मूव एंड हेवी वोंट मूव. अर्थ और एग्जाम्पल के केस, अर्थ और मून के एग्जाम्पल के केस में हैवी कौन है? अर्थ है कि मून है? तो आप कहोगे सर अर्थ हैवी है, राइट.
तो अर्थ अपनी जगह पे रहेगा, क्यों? क्योंकि वो हैवी है, और मून क्या होगा? मूव करेगा। समझ में आया? ओके, आई कैन गिव यू वन मोर एग्जांपल दैट इन केस ऑफ अर्थ एंड सन, अर्थ एंड सन, अर्थ एंड सन, अर्थ और सन के केस में हैवी कौन है? तो आप कहोगे सर सन हैवी है, राइट? बराबर। तो अगर सन हैवी है तो सन अपनी जगह पे रहेगा, और जो लाइट बॉडी है यानी अर्थ वो होगा मूव। समझ में आया? तो एक्सेलरेशन के केस में या ग्रेविटी के केस में जो लाइट होगा वो मूव होगा, और जो हैवी होगा वो अपनी जगह पर रहेगा। ओके, एप्पल लाइट था तो वो मूव हुआ, अर्थ लाइट नहीं हैवी है तो अपनी जगह पे था। मून और अर्थ की बात किया तो मून लाइट है तो वो मूव होगा और अर्थ अपनी जगह पे रहेगा। ओके, और अर्थ और सन के केस में सन बड़ा है, सन हैवी है, तो उसकी वजह से अर्थ मूव होगा, सन अपनी जगह पे रहेगा। ओके, सो मेक अ नोट ऑफ दिस कंसेप्ट दैट हाउ आई हैव बेसिकली प्रूव्ड योर ग्रेविटी यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, and then we can continue with the universal law of gravity. So friends, up till now we have understood that every particle in the universe attracts the other particle, right? ये particle इसको अपनी तरफ खींचेगा,